ये पहली गड्डी जी दो गड्डी इसे बंदे दौड़ी पे ना पर पहली गड्डी आप लोग पीछे रहो यार, क्या कर रहे हो? Shri V.R. Subramaniam. Ladies and gentlemen, a very warm welcome and good morning to all. This passing out ceremony is for the 3 batches of forest guards of 3 forestry training schools of Jammu and Kashmir, including Soil Conservation Training School, Miran Sahib, Forest Guard Training School, Duni, and Kashmir Forest Training School, Chitarnar, Bandipura. The training of forest guards is for 6 months duration and was started in February 2020. However, due to COVID-19 pandemic, the training had to be discontinued for some time and was restarted again in October 2020. Hence, the training duration became 1 year. During the training, the trainees were imparted knowledge of core forestry subjects like silviculture, forest mensuration, wildlife management, and participatory forest management. They were also exposed to different forestry management skills, besides developing all-round personality by orienting their attitudes to accept the challenges of the careers ahead. Field exercises were conducted in all the 3 batches, like on mensuration, micro-planning, wood anatomy, wildlife techniques, basic surveying, and land measurements. They were also imparted basic computer training in the training schools and were given inputs on latest technologies, including geographical information systems and global positioning systems. As per old age adage, a sound mind in a sound body. All the trainees underwent vigorous physical training every morning under trained physical training instructors. Even drill instructors from J&K Police Department were deputed specially to these schools for more vigorous and efficient training. The trainees also participated in endurance run and different outdoor sports activities like volleyball, cricket, football, and athletics. They were also trained in jungle tactics and jungle survival techniques. Various orientation and sensitization training programs like on Forest Rights Act, People's Biodiversity Registers were organized from time to time, in which subject matter experts and domain experts delivered the lectures. The first batch of this passing out ceremony is 32nd Forest Guards training course, who joined the training in February 2020 at Soil Conservation Training School, Miran Sahib, Jammu. There are 38 trainees in the batch with 35 male trainees, and there are 3 female trainees. Among 38, 4 are in-service trainees and 34 are newly recruited trainees. As regards educational qualification, trainees are educated, 9 trainees are educated up to 10+2, 13 are graduates, including 1 engineering graduate, and 16 are postgraduates. All the 38 trainees have passed the training examination successfully, and I congratulate all of them. देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक बार पुनः जम्मू व कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मुख्य अतिथि के रूप में वार्षिक समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए
उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं मुख्य सचिव श्री पी.वी.आर. सुब्रमण्यम जी तथा आयुक्त वन सचिव श्रीमती सरिता चौहान जी का भी उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज जम्मू व कश्मीर वन विभाग को 98 प्रशिक्षित वन रक्षक मिलने जा रहे हैं, जिससे वन संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन की हमारी क्षमता में और भी वृद्धि होगी। माननीय महोदय, जम्मू व कश्मीर के ग्रीन कवर इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 55% है। यह राष्ट्रीय औसत 24.6% की तुलना में काफी अधिक है, परंतु राष्ट्रीय वन नीति के पहाड़ी राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र के 2/3 भाग पर हरित आवरण होने की अपेक्षा की गई है, ताकि नाजुक परितंत्र की स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। इसीलिए इस अंतर को पूरा करने के उद्देश्य से जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा ग्रीन जम्मू व कश्मीर ड्राइव शुरू की गई है। इसके अंतर्गत इस वर्ष ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, विभिन्न विभागों, विद्यालयों, एनजीओ तथा सिविल सोसाइटी की सहभागिता से 1 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से मैं माननीय महोदय का हाल ही में श्रीनगर में स्कूली बच्चों के साथ आयोजित की गई ग्रीन व जम्मू कश्मीर ड्राइव में शामिल होने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं और यह कामना भी करता हूं कि आगे भी हमें इस तरह के सुनहरे अवसर मिलते रहेंगे। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने पर जम्मू व कश्मीर वन सार्वजनिक विविधता वाले वनों में शामिल है। यह बताते हुए भी मुझे प्रसन्नता होती है कि जम्मू व कश्मीर के भूभाग का लगभग 12% वन्य जीव प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है, जो देश के किसी भी अन्य राज्य से अधिक है। माननीय महोदय, काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल, भवन निर्माण हेतु टिम्बर तथा कृषि आधारित कई उपकरणों की पूर्ति वनों से होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं तथा लगभग 1 करोड़ मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराते हैं। अच्छे घनत्व वाले वन जम्मू व कश्मीर की खूबसूरती का और भी चार चांद लगाते हैं और टूरिज्म को बढ़ावा देने में इससे मदद मिलती है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, कृषि, शीप और एनिमल हस्बेंड्री एवं हॉर्टिकल्चर जैसे सेक्टर्स को भी सहयोग देते हैं। वनों से हमें अनेक लाभ जैसे स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, मृदा एवं नमी संरक्षण, बाढ़ से रोकथाम तथा भूजल के रिचार्ज करने में जैसे विभिन्न लाभ भी प्राप्त होते हैं। फॉरेस्ट और पानी का बहुत पुराना कनेक्शन है और 75% जो फ्रेश वाटर है वो जंगलों से ही प्राप्त होता है। इन सभी लाभों के कारण जम्मू व कश्मीर के वनों का मौद्रिक मूल्य तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। माननीय महोदय, आपके नेतृत्व में जम्मू व कश्मीर विकास के मार्ग पर तेजी से बढ़ रहा है। इस तेजी से बदलते परिदृश्य में एक फॉरेस्टर की भूमिका कई गुना बढ़ गई है। आज एक वानिक वनों के प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट की परंपरागत जिम्मेवारियों के साथ साथ अनेक नई जिम्मेवारियों का भी निर्वहन कर रहा है, जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत मामलों का तुरंत निस्तारण, वन आधारित उद्योगों का रेगुलेशन, ग्राम पंचायतों की सहायता व उनको लाभ उपलब्ध कराना, जैव विविधता का संरक्षण जैसे कार्य शामिल हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से फॉरेस्टर की भूमिका को और भी विस्तार मिला है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट फ्रंटलाइन स्टाफ को उपयुक्त प्रशिक्षण देना बेहद जरूरी है। इसमें कुछ तब्दीलियां भी लाई गई हैं ताकि एक सक्रिय और अभिप्रेरित फ्रंटलाइन कैडर तैयार हो सके। माननीय महोदय, ये सभी प्रशिक्षण जैसा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने बताया पिछले साल फरवरी में शुरू किए गए थे, किंतु लॉकडाउन के कारण इन्हें बीच में रोकना पड़ा। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए प्रशिक्षण का एक नया प्रारूप तैयार किया गया। इसमें हमने कुछ नई पहल करने का भी अवसर मिला, जिनका संक्षिप्त विवरण मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसी विविध विषयों पर प्रशिक्षण जारी रखा। इसके साथ साथ राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जम्मू के सहयोग से भूमि के माप, भू रिकॉर्ड, भूमि आधारित कानूनों पर भी प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग को हैंड्स ऑन बनाने
एवं ट्रेनिंग स्कूल परिसर से बाहर ले जाने के लिए ट्रेनिंग्स का फील्ड अटैचमेंट किया गया, जहां उन्हें वन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को सिखाया गया। उन्हें फॉरेस्ट गार्ड बुक, नर्सरी प्लांटेशन जर्नल, फॉरेस्ट ऑफेंस रिपोर्ट, सुपरनामा, जब्ती ज्ञापन जैसे कई प्रकार के रिकॉर्डों से परिचित कराया गया तथा विभिन्न कार्यों की योजना बनाने और निष्पादन में भी शामिल किया गया। वन रक्षक ट्रेनिंग्स के लिए फील्ड ट्रेनिंग कैंप का भी आयोजन किया गया, जहां इन्हें फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट बॉटनी, नर्सरी प्लांटेशन तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान ट्री इन्यूमरेशन, मार्किंग, मेंसुरेशन और फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन पर व्यवहारिक अभ्यास कराया गया। माननीय महोदय, जम्मू व कश्मीर में पंचायत आधारित जैव विविधता प्रबंधन समिति, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, के परामर्श से जन जैव विविधता रजिस्टर, जिसे हम पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहते हैं, तैयार किए गए हैं। यह बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि जम्मू व कश्मीर में यह रजिस्टर कोविड पैंडेमिक के बावजूद भी रिकॉर्ड टाइम में तैयार किए गए। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य सचिव एवं कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय महोदय, ये एक गतिशील रजिस्टर है, इसके लिए नियमित अपडेशन की आवश्यकता होती है। अपनी तरह के पहले प्रयोग में ट्रेनी वन रक्षक के माध्यम से हमने विभिन्न बायोडाइवर्सिटी कमिटीज के परामर्श से 98 रजिस्टर्स को अपडेट किया है और आगे भी ये ट्रेनिंग विद इन मंथ 4 एक ट्रेनिंग पर रजिस्टर तो 400 और भी पूरा करने जा रहे हैं। इस अनुभव से जम्मू व कश्मीर के बाकी पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स को अपडेशन में मदद मिलेगी। माननीय महोदय, वन अधिकार अधिनियम के सफल इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित कराने में वन विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसमें फ्रंटलाइन स्टाफ की भूमिका अहम है। इसमें जागरूकता फैलाने से लेकर रिकॉर्ड, नक्शे उपलब्ध कराना, क्षेत्र सत्यापन में सहायता शामिल है। इन जरूरतों को देखते हुए वन रक्षक ट्रेनिंग्स के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसमें जीपीएस हैंडलिंग का प्रशिक्षण भी शामिल है। इसके दौरान मास्टर ट्रेनर्स भी तैयार किए गए हैं। इस प्रयास से फॉरेस्ट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में वन विभाग की भूमिका को मजबूती मिलेगी। माननीय महोदय, योजना बनाना, निर्णय लेना और निष्पादन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और बढ़ती भागीदारी को देखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि ट्रेनिंग्स को सामाजिक कौशल से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जाए। अंत में एक बार पुनः मैं मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय तथा अन्य सम्मानित अतिथियों की उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पास आउट होने वाले फॉरेस्ट गार्ड के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद। Then, an endurance run was also conducted. The second prize in endurance run has been bagged by Mr. Bhushan Lal, Forest Guard, who completed the 10-kilometer run in 43 minutes and 6 seconds. Mr. Bhushan Lal. I will come to academics. In academics, 858 marks out of 1125 marks. Mr. Mukesh Singh. Second prize in academics goes to Mr. out of 1125, Mr. Pushpan. The first prize in academics has been the best silviculturist award goes to Mr. Karanjit Singh, Forest Guard of Ramban Forest Division. He has scored 93 marks out of 100. In marathon, in endurance run of like 10 kilometers has been backed by Mr. Vikram Chid, Forest Guard. He has done it in 55 minutes and 7 seconds. The first prize in endurance run goes to Mr. Gulshan Kumar, Forest Guard. He has done it in 54 minutes and 46 seconds. The third prize
to kindly release the publications through the department. Guards ट्रेनिंग में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों जैसे सिल्वीकल्चर, बॉटनी, फॉरेस्ट मेंसुरेशन, फॉरेस्ट लॉ, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इत्यादि के बारे में पाठ्यक्रम के अनुसार जानकारी दी गई है। ये कंपेंडियम जम्मू कश्मीर के वन प्रबंधन की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए आपकी 2012 से 2018 में विषयकों के आधार पर एवं रिपोर्ट सेंसिंग की मदद से लगाया गया। ये रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग द्वारा तैयार की गई है। देवियों, सज्जनों तथा अतिथियों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज मैं फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग के 32वें, 56वें तथा 66वें कुल मिलाकर 3 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के पासिंग आउट समारोह के अवसर पर आपके बीच उपस्थित हूँ। आप में से अधिकांश फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इंजीनियरिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। ये गर्व का विषय है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की महत्ता को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स के जमाने में उनके फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग रॉयल इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज लंदन में हुआ करती थी। वर्तमान में भी आप तमिलनाडु को देख लीजिए, 2019 में वहां 597 फॉरेस्ट गार्ड्स का चयन हुआ था। उसमें से 257 जो गार्ड्स थे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। मुझे लगता है कि फिर ये विचार का विषय हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉरेस्ट के लिए, प्राकृतिक संपदा के लिए काम करना मुझे लगता है कि एक सम्मानित प्रोफेशन है। इसलिए इस बैकग्राउंड के लोग भी इस प्रोफेशन में जा रहे हैं। प्रकृति की सेवा के माध्यम से फॉरेस्ट गार्ड मुझे लगता है कि मानव समाज की बड़ी भारी सेवा कर रहा है। आप अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और उसके लिए मेरी हृदय से शुभकामनाएं हैं आप सबको। खासतौर से जिन्हें भी मेडल्स दिए गए उनको भी मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ। मेडल्स की संख्या सीमित होती है और इसलिए जिसको नहीं मिला है मुझे लगता है कि उसको भी उत्साह से ही आगे आने वाले दिनों में काम करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की मिट्टी, आप सबको पता है कि सैविज्म, बुद्धिज्म की खुशबू है। और एक छोटी बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। एक बड़े प्रसिद्ध बौद्ध गुरु से उनके शिष्य ने एक सवाल किया कि गुरुवर, बुद्धिज्म है क्या? तो उनका जवाब जो था वो मुझे लगता है कि गौर करने लायक है। हवा चलने पर बांस के पेड़ों से जो आवाज आती है वही बुद्धिज्म है। नेचर, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को लेकर के भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन मुझे लगता है कि पुरातन काल से हमारी सभ्यता और संस्कृति का यह अंग रहा है। और आज जो सभी 98 फॉरेस्ट गार्ड्स ट्रेनिंग के साथ मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से उनको ध्यान में रखना होगा। कुछ दिन पहले एक मैगजीन ने फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, अनसंग हीरोज, में गुमनाम नायक। मुझे लगता है कि फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक ये हीरो हैं, लेकिन ये गुमनाम नहीं है। जिन मुश्किल इलाकों में आगे चलकर
आप और आपके सीनियर अफसर रोज काम करते हैं और अनगिनत बाधाओं से जूझते हैं, चाहे वह शिकारियों से निपटना हो, अतिक्रमणकारियों, तस्करों, माफियाओं से लोहा लेना हो, आजकल बढ़ रहे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को संभालना हो, जंगल की आग से जूझना हो, मैं मानता हूं कि जान जोखिम में डालकर प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के लिए जो काम करता है वो अनसंग हीरो नहीं है, वह रियल हीरो है, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में जब भी पर्यावरण संरक्षण तथा प्रोजेक्ट टाइगर जैसे सफल अभियानों की चर्चा होगी, उसमें योगदान देने वालों में फॉरेस्ट गार्ड्स का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। आज अगर एशियाटिक शेरों की संख्या में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसमें उनका श्रेय वृक्षारोपण को अभियान की तरह चलाया जा रहा है, तो उसका श्रेय भी मैं समझता हूं कि फॉरेस्ट गार्ड्स को जाता है। मित्रों, हर साल जब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो देश नहीं पूरे विश्व में समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए आप लोगों के कठिन परिश्रम को याद किया जाता है। और आप तो बखूबी जानते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा में पेड़ों का कितना महत्व है। हमारे यहाँ तो पेड़ की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ जंगल सभ्य समाज का अभिन्न अंग माने जाते हैं। ज्ञान, तप, शिक्षा सब जंगल से ही निकले और इसी सभ्यता की रक्षा की जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आ जा पड़ी है। जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है और न ही हमारे बिना उनका अस्तित्व है। हम बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जड़ों की गहराई से जुड़े हुए। मित्रों, संविधान के आर्टिकल 51A में लिखा गया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा कि भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य होगा वो प्रकृति की रक्षा और जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित पर्यावरण में रह रहे सभी जीवित प्राणियों के लिए दया भाव रखे। मैं समझता हूं यह हर भारतीय का कर्तव्य है और इसलिए मैं मानता हूं कि आप सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं बल्कि संविधान में उल्लिखित निर्देशों का 100% पालन हो खुद भी करेंगे और लोग भी करें, इसके लिए आपको आने वाले दिनों में प्रयत्न करना है। आप सब को शायद कोर्स के दौरान आसाम के फॉरेस्ट गार्ड दिम्बेश्वर दास की कहानी जरूर बताई गई होगी। उन्हें अर्थ वॉरियर या जलवायु योद्धा भी कहा जाता है और न जाने कितने कितने नामों से उन्हें पुकारा जाता है। ऐसे लोग केवल आपके लिए प्रेरणा स्रोत नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर, जिसे हम फिरदौस, पैराडाइज, धरती की जन्नत कहते हैं, उसके प्राकृतिक संसाधनों की आप न सिर्फ रक्षा करेंगे, जैव विविधता को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि जलवायु परिवर्तन की गति को भी इस यूनियन टेरिटरी में कम करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के महानतम इतिहासकार कल्हड़ ने राज तरंगिणी में लिखा है, यह ऋषि कश्यप द्वारा स्थापित ऐसा क्षेत्र है जहाँ सूरज धीमे से चमकता है, यहाँ अद्भुत प्रकृति के दर्शन होते हैं। कैलाश तीनों लोकों में सबसे उत्तम स्थान है, हिमालय कैलाश में सबसे उत्तम है और कश्मीर में पूरे कश्मीर हिमालय में सबसे उत्तम
जगह है, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है। जब इस खूबसूरत जगह को उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मुझे लगता है कि अब आपके कंधों पर आ पड़ी है। मित्रों, आप जम्मू कश्मीर के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे और उनकी आजीविका में सुधार लाने के लिए भी सरकार के, शासन के प्रतिनिधि के रूप में आगे आपको काम करना है। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत 1857 में हुई है, जब वनों की सुरक्षा और उनके विवेकपूर्ण दोहन को सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग के अंतर्गत एक प्रशासनिक इकाई स्थापित की गई थी, जिसे महले नवारा या फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन यूनिट कहा जाता था। बाद में सन 1891 में वन विभाग का गठन हुआ और वनों का सीमांकन करने के साथ साथ उन्हें बीटों, ब्लॉकों, रेंजों और डिवीजन में व्यवस्थित किया गया, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर में वनों के वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन की नींव रखी गई। मेरे पूर्व प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ने बहुत विस्तार से बताया है, मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बातें कहना चाहूँगा। 1893 में फॉरेस्ट रेगुलेशन और रूल्स बनाए गए और जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट मैनेजमेंट के इतिहास में मैंने पढ़ा है 1902 में पहली बार सब डिवीजन लेवल पर भद्रवा में पहला ऑफिस बना और उसके बाद 1908 में किश्तवाड़ में ऐसा ही ऑफिस जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए खोला गया। आपने शायद उसके बारे में अपने कोर्स के दौरान भी पढ़ा होगा, लेकिन इतिहास का जिक्र करके मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वनों को बचाने और उनके संरक्षण में आपकी भूमिका किसी भी प्रकार से हमारी सेना या पुलिस से कम नहीं है। अपने कर्तव्य को पूरी शिद्दत से निभाने की आपकी रिच लेगेसी है। मुझे मालूम है कुछ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन स्टाफ ने तस्करों और अन्य वन अपराधियों का डटकर मुकाबला किया है और अपने कर्तव्य पालन में विभाग के कुछ कार्मिकों ने अपने प्राणों का भी सर्वोच्च बलिदान किया है। इस अवसर पर मैं दिन रात वनों, वन्य जीवों और पर्यावरण की सेवा करने वाले वनकर्मियों की वीरता को नमन करता हूँ। मैं वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये निवेदन करना चाहूँगा कि 11 सितंबर हर वर्ष जम्मू कश्मीर के सभी फॉरेस्ट ऑफिसेस में इन शहीदों की श्रद्धांजलि में एक कार्यक्रम निश्चित रूप से होना चाहिए। आवाम को भी उनके त्याग और बलिदान की कहानी हम बता सकें, मुझे लगता है ये आवश्यक है। अभी कुछ दिन पहले मैं भारतीय वन सर्वेक्षण की 2019 की रिपोर्ट देख रहा था। मुझे गर्व है कि फॉरेस्ट कवर में, जैसा गेरा साहब ने बताया, 348 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी के साथ जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र फॉरेस्ट कवर में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज करने वाले 5 शीर्ष राज्यों में अपना स्थान बना सका। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट कवर में वृद्धि का मुख्य कारण वृक्षारोपण तथा संरक्षण की गतिविधियां हैं। इसके लिए मैं सभी फॉरेस्ट गार्ड्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों, कार्मिकों तथा श्री गेरा और सरिता चौहान जी को हृदय से बधाई देना चाहूंगा। वनों ने काफी बड़ी धनराशि प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और 15वें वित्त आयोग के अनुसार लगभग वार्षिक सालाना 1700 करोड़ रुपए अब जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को इसके कारण प्राप्त होगा। मैं इस उपलब्धि के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हृदय से
बधाई देना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य की ताकत मुख्य रूप से उसके प्राकृतिक और मानव संसाधनों में ही निहित होती है। जम्मू कश्मीर में 40 से ज्यादा वनों के प्रकार पाए जाते हैं, जो देश के किसी अन्य हिस्सों की तुलना में सबसे अधिक है, और हमारे वनों के इकोसिस्टम की विविधता को भी दर्शाते हैं। मुझे बताया गया है कि आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के आकलन के अनुसार वनों में मिलने वाले टिम्बर, फायरवुड, चारा और नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स का मौद्रिक मूल्य लगभग 3000 करोड़ रुपए का है, जो जम्मू कश्मीर की कुल GSDP के 2% से अधिक है। इको टूरिज्म और लकड़ी पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे नए उपायों के द्वारा GSDP बढ़ोतरी में मुझे लगता है कि और योगदान दिया जा सकता है, इसकी गुंजाइश है। और मेरा आग्रह होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अन्य संबंधित विभागों के साथ बातचीत करके इस पर सुनिश्चित कार्यक्रम निर्धारित करे और आने वाले दिनों में इन कार्यक्रमों को पूरा करने की कोशिश करें। मित्रों, हम वनों में रहने वाले और वनों पर ही आश्रित अपने भाइयों बहनों के लिए वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी गेरा साहब ने मेरे पूर्व इसको बताया है। संसद द्वारा वर्ष 2006 में पारित होने के बावजूद यह कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, जिसके कारण ये लोग अपने अधिकारों से वंचित थे। इस प्रक्रिया को पूर्ण कर हम जंगलों पर आश्रित समुदायों को न्याय संगत अधिकार प्रदान कर सकेंगे, और इसके लिए फॉरेस्ट तथा ट्राइबल डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इस अधिनियम के पूर्ण रूप से लागू हो जाने के बाद अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पारंपरिक फॉरेस्ट ड्वेलर्स समुदायों की आजीविका, सुरक्षा, गरिमा और समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, संवेदना के साथ, मानवीय संवेदना के साथ इस काम को उचित ढंग से हमें करने की जरूरत है। मित्रों, जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस परिदृश्य में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बड़ा जरूरी है, और इसे हमें सुनिश्चित करना होगा। वन विभाग की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ वन विभाग विकास के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए नए तरीकों पर भी खोज करेगी। मुझे विश्वास है कि ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के अंतर्गत 1 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है, वो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुरानी कहावत है, फॉरेस्ट हमारी जमीन के फेफड़े जैसा है। वे हवा को शुद्ध करते हैं, जंगल हमारे, और लोगों को नई ताकत देते हैं। इसलिए अपने फॉरेस्ट कवर के लिए इकोलॉजी रेस्टोरेशन और संरक्षण के मॉडर्न तरीकों, टेक्नोलॉजिकल उपयोगों और सक्रिय जन भागीदारी की आवश्यकता हमें होगी। हमें जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों और मजबूत करना होगा, और पर्यटन को पर्यावरण संरक्षण से भी मुझे लगता है कि जोड़ने की प्रबल संभावना जम्मू कश्मीर में हम सबको दिखाई पड़ती है। ऑफॉरेस्टेशन तथा वन संरक्षण के मैंडेट के साथ वन विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों जैसे ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन को सक्रिय रूप से शामिल करते हुए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जन भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने की आवश्यकता है। इस पर बल दिया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे स्थानीय शहरी निकायों तथा अन्य संबंधित विभागों, NGO तथा सिविल सोसाइटी के सहयोग से शहरी क्षेत्रों में पौधारोपण का काम किया जा रहा है। मेरी अपेक्षा होगी, मेरा आग्रह होगा और सलाह भी होगी कि पौधारोपण संबंधी विभिन्न गतिविधियों में स्कूली छात्रों को भी हमें शामिल करने की आवश्यकता है, जिससे बचपन से ही उनमें प्रकृति के प्रति चेतना की भावना तथा समाज सेवा का भाव उत्पन्न हो। और मेरा आग्रह होगा खास शहरी क्षेत्रों में बाल वन, चिल्ड्रन पार्क और सीनियर सिटीजन के लिए अगर हम
डिपार्टमेंट की जमीनें भी बहुत हैं। मुझे लगता है ये समाज की बड़ी सेवा होगी। मुझे लगता है कि इको क्लब भी अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम चलाते हैं, जिसमें हमारे नौजवान बच्चे विद्यार्थी भाग लेते हैं और उसके लिए कोई वार्षिक पुरस्कार हम रखते हैं, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में लोगों की अभिरुचि इसमें बढ़े। मुझे देखकर अत्यंत खुशी हो रही है कि इसमें 3 महिला फॉरेस्ट गार्ड भी अपना आज प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं। मुझे याद है पिछले साल कन्याकुमारी जिले की इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अभिषा कुमारी फॉरेस्ट गार्ड बनी थी और उन्हीं के साथ की देवकी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर थी, नौकरी छोड़कर कोयम्बटूर फॉरेस्ट में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी उन्होंने ज्वाइन की। उस मौके पर पूरे देश में जश्न मनाया गया। मुझे भी आज गर्व की अनुभूति हो रही है। वन संसाधन प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका मैं मानता हूँ और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज पास आउट होने वाले युवा फॉरेस्ट गार्ड से मैं उम्मीद रखता हूँ, अपेक्षा है कि वे सदैव इसका ध्यान रखेंगे तथा वन संरक्षण एवं संवर्धन गतिविधियों के दौरान महिलाओं और ग्रामीण समुदायों की आवाज जरूर सुनेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आपके प्रयासों से ग्रामीण समुदाय का बोझ कम होना चाहिए तथा उनके लिए आजीविका के अवसर कैसे पैदा होंगे, इस पर विचार करने की हमें आवश्यकता है। उन्हें जलाऊ लकड़ी, चारा और टिम्बर जैसी सेवाओं की समय समय पर आवश्यकता होती है। हमें अपने वैधानिक कानूनों के अंतर्गत हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, संवेदनशील मनुष्य के नाते हमें इस पर भी विचार करने की जरूरत है। आपको लकड़ी से जुड़े उद्योगों का भी ध्यान रखना होगा और रोजगार प्रदान करने के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान देना होगा। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वन व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता लाना मुझे लगता है ये शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल आप सभी को इन चुनौतियों के प्रति उचित दृष्टिकोण और उत्तरदायित्व की भावना के साथ तैयार करने का एक सराहनीय कार्य कर रहा है। सीखना एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति पूर्णांक नहीं होता है। जीवन भर सीखने का अवसर सबको मिलना चाहिए। अतः आपने जिस ज्ञान और कौशल अपने प्रशिक्षण के दौरान हासिल किया है वो आपके कैरियर में नींव का काम करेगा। मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं और विशेष रूप से उन लोगों को जिन्होंने अपनी योग्यता और उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जैसे वृक्ष बादलों को बरसने का निमंत्रण देता है, वैसे ही जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक संपदा आपको निमंत्रण दे रही है और आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि एक गुलाब का फूल भी सैकड़ों सितारों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। मैं जम्मू कश्मीर की वन संपदा की सुरक्षा, संरक्षण और विकास में आपके प्रयासों के सफलता की कामना करता हूँ। एक तो छोटी बातें मुझे कहनी है। आप सबको मालूम है कि आज 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, तो मैं इसकी भी शुभकामना आप सबको देता हूं। आज विश्व श्रवण दिवस है, वर्ल्ड हियरिंग डे, इसकी भी शुभकामना देता हूं। 4-5 दिनों पहले मैं डाची गांव गया। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा। वहां हांगुल कितने हैं, कितने हम बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। और क्या सामान्य व्यक्ति के लिए उसे हम एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयत्न कर सकते हैं। जो हमारी मान्यताएं जो हमारे लिए प्रतिबंधित है उसे रोकते हुए, क्योंकि कहीं भी जब जहाँ परमिशन लेनी होती है सरकारी तंत्र में, मुझे लगता है सामान्य आदमी को कठिनाई होती है। ऐसा कोई सिस्टम हम विकसित कर सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी देश के कोने कोने से लोग आते हैं तो उसे देख सकें, इस इलाके के लोग भी चाहें तो देख सकें। भले ही संख्या हमको सीमित करनी पड़े, लेकिन निश्चित सीमा जो हम हमारे लिए अपरिहार्य होगी
जिससे कोई नुकसान न हो पर्यावरण का, उसका ध्यान में रखते हुए इस पर सोचने की जरूरत है। पिछले दिनों में पुरमंडल गया था, मैंने वहां देखा मानसर, सुरिसर की लेक, उत्तरवाही। मुझे लगता है कि वन विभाग को उन प्राकृतिक स्थलों को भी देखने की जरूरत है। तो वहां आप क्या कर सकते हैं? वहां की इकोलॉजी बचाने के लिए देश भर के लोग वहां आते हैं, अनेक कारणों से आते हैं। मुझे लगता है कि एक दूसरा काम हो सकता है जिस पर आप विचार कर सकते हैं। तीसरा, वेटलैंड और वेस्टलैंड। अनेक प्रकार की पक्षियां हमारे यहाँ हैं। मुझे लगता है कि इसको बचाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्या भूमिका हो सकती है। मैं समझता हूं कि इस पर जरूर काम करने की आवश्यकता है। इन 3 सुझावों के साथ मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री मनोज सिन्हा जी। And to Shri BVR Subramaniam. And to Ms.